Hello, my dear friends. In P block element, today we will discuss about the anomalous behavior of nitrogen. Anomalous behavior means the first element of each group in periodic table shows totally different properties with respect to the other element of same group. As you studied in previous standard, in group number 1 lithium shows anomalous behavior. In group number 2, beryllium shows anomalous behavior, and lithium and beryllium also shows diagonal relationship. Similar way in P block, from group number 13 to 18, first element of each group shows anomalous behavior. Anomalous, the simple meaning is different behavior in many properties. Majority in each group, the reasons of anomalicity is same, and here is the reason for anomalicity of nitrogen is the smallest size in group, highest electronegativity, highest ionization enthalpy in group. See all this comparison with respect to its group's other members, and highest bond dissociation enthalpy means energy required to break nitrogen-nitrogen bond. Highest ionization enthalpy means the energy required to remove the outermost electron. And as you know, the first element in each group shows highest electronegativity in P block. In each group, first element has a smallest size. So let us discuss one by one. See, in our book, the anomalous behavior written in a paragraph form, and it is difficult to understand. See, in this question, I change language also. I write the complete question in a easiest language, understandable language. Some concept you should have clear, like pi bond concept. Okay, so let us discuss one by one. So whenever you write this question in a board supplementary, then make a two part, one side nitrogen, other side other element of the same group. This question generally asked in exam in 3 marks. Suppose this question asked in 2 marks, then you have to write 4 points. In 3 marks, then you have to write 6 points. And if this question asked in 4 marks, if you are lucky, then you have to write 8 points. Each point carry half marks. Half mark. Okay. And the opposite point must be similar. You cannot write randomly. See, let us discuss the anomalicity one by one. See, first one, we will write first regarding nitrogen and the different property of other element. So nitrogen we know very well is a diatomic gas, nitrogen gas. So other elements are polyatomic, like a phosphorus is nothing but P4, arsenic is nothing but As4. Phosphorus whenever you observe, then 4 atoms together, while nitrogens are 2 atoms together. So diatomic, this is a tetraatomic, or whenever there is a tetraatomic general word we are using polyatomic. 4 atoms together. Okay, P4, As4, Sb4, but in bismuth this type of polyatomicity not observed. Why? Because bismuth is a metal. So this exception I already told you is the question of competitive exam. Second point, I have derived 11 points and all are written in a easy language, so it is understandable to you. Some are based on memory, some are based on the understanding point, like that. uh, Hydride of nitrogen, you know, ammonia, and ammonia gas is a non-poisonous gas, while other gases of other element, hydrides of other elements, are poisonous. So see,
Simple relation is there. Hydride non-poisonous, hydride are poisonous of other element. Phosphine. Phosphine is the poisonous gas. Okay. In a later in a chemistry of phosphorus, we have to prepare phosphine, its properties and uses. Arsine. Arsine is also poisonous gas. Okay. Another one point is here missing, that is nitrogen does not contain allotrope while other elements contain allotrope. If I give you one example here, then that is the phosphorus. Phosphorus are three types: red phosphorus, black phosphorus, yellow phosphorus, while nitrogen is only one. Allotropy means same element, different forms, like carbon. Carbon exists as a graphite, diamond, fullerenes, coal, carbon black, etc. Okay, but here in this group carbon is not there, so we can give here example of phosphorus. Not necessary to write. The main point is nitrogen does not show allotropy while other element shows allotropy. नाइट्रोजन के और कोई फॉर्म नहीं होते, जैसे मैंने बताया कि फॉस्फोरस में, आर्सेनिक में, एंटीमनी, बिस्मथ, दे contain allotropy. Antimony, bismuth, they are alpha form, beta form, like that. Okay, so if you want to give example, then you can give here example of phosphorus. P4 contain three form: red, black and yellow. Third point already discussed. Let us move to the fourth point. See, oxides of nitrogen are monomeric, and all oxides are acidic. And most important one asked so many time in Gujkat exam, which of the following is neutral? So one oxide was there in group number 14, carbon monoxide was a neutral, was there in 11th standard. Another one is the NO, nitrogen monoxide, is a neutral. Remaining all oxides of nitrogen are monomeric. Monomeric means contain one molecule. Dinitrogen oxide, dinitrogen trioxide, already you know very well. These all are acidic except this one. All are acidic except this one. This one is neutral. While oxides of other elements are dimeric. Either they are acidic or basic or amphoteric. In periodicity we discussed that down the group acidic character decreases, basic character increases for oxides. Okay, you know very well from 11th standard that non-metal oxides are acidic, semi-metal oxides are amphoteric, and metallic oxides are basic. So see, this is a phosphorus trioxide, phosphorus pentoxide, arsenic trioxide, arsenic pentoxide. But whenever they exist as a two molecule, means two molecules of P2O3. So it is written here dimeric. So these phosphorus oxides are acidic, arsenic, antimony are amphoteric, bismuth oxides are basic, like that. Okay, so two molecules means you can write either 2 moles of P2O3 or you can write like this P4O6, 2 moles of P2O5, then or you can write the P4O10, 2 AS2O3 or you can write AS4O6 or similar way AS4O10. So whenever there is oxides are there, another thing derived from this, see, nitrogen exists as a varieties of oxide: monoxide, dioxide, trioxide, tetroxide, pentoxide. See, this one is monoxide, this is the dioxide, this one is also monoxide, trioxide, tetroxide, and this one oxygen 5 pentoxide. When you observe here in other element, so only observe as a trioxide and pentoxide. This separate point you can write. I have separated out. Let us move to the next point, point number 5. तो उसी में से मैंने एक पॉइंट निकाल दिया है, जिसको ऑक्साइड का पता है वो एक अपने आप लिख सकता है कि नाइट्रोजन वेराइटीज ऑफ ऑक्साइड कैन फॉर्म. ओके,
while other element can form only ट्राइऑक्साइड पेंटॉक्साइड। आप देखिए फॉर्मूला में या तो O3 आ रहा है या तो O5 आ रहा है, नाइट्रोजन में O आ रहा है, O2 आ रहा है, O3 आ रहा है, O4 आ रहा है, O5 आ रहा है, मतलब कि वो मोनोक्साइड भी फॉर्म कर रहा है, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्रोक्साइड, पेंटॉक्साइड भी फॉर्म कर रहा है। ये तो ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड ही फॉर्म कर रहे हैं। आपने आगे देखा है P2O3 एंड P2O5, AS2O3 एंड S2O5, Sb2O3 and Sb2O5, Bi2O3, Bi2O5, लाइक दैट। और एक बढ़िया पॉइंट है जो आप अपने आप लिख सकते हो, आपको पता है नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, वाइल डाउन द ग्रुप phosphorus is non-metal, then after semi-metal, then last element is typical metal। ओके तो बाकी का जो एलिमेंट है उसमें मिक्सर है, मेटल नॉन मेटल भी है, सेमी मेटल भी है, वाइल फर्स्ट एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। 7th नंबर पॉइंट, कल भी मैंने आपको बताया था कि NX5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि NX5 अगर बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो हमें चाहिए d ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल ऑलरेडी है ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि NX5 जो है वो बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके ये हेलोजन अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाना है कि NX5 नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जब आप फॉस्फोरस पे आते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 33, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। सो इन थर्ड ऑर्बिट देयर इज अ 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट, S, P एंड D। तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब जो एलिमेंट है, यहाँ में मैंने जनरल EX5 फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि एलिमेंट की जगह पे आप फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कोई भी कंसीडर कर सकते हो। हेलोजन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे EX5 पॉसिबल है। क्यों EX5 पॉसिबल है? क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। और बढ़िया कंसेप्ट, ऑल NX3 ट्राई हेलाइड तो नाइट्रोजन में पॉसिबल है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, d ऑर्बिटल की जरूरत नहीं है, तो NX3 पॉसिबल, बट ऑल NX3 आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव्स। ओके एक को छोड़ के NF3, उसका रीजन भी आता है, लेकिन अभी आप याद रखिए ऐसा क्यों है, वो नाइट्रोजन की हम केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो एनोमलस बिहेवियर के बारे में ही सोचना है कि नाइट्रोजन के जितने ट्राई हेलाइड है, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, सब अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव है एक को छोड़ के। तो मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ मैं कि जब भी एक्सेप्शन आता है तब समझ लो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी एलिमेंट जो है उसका EX3 एलिमेंट, मतलब कि नाइट्रोजन को छोड़ के सब एलिमेंट, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एंड X3 मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर ऑल स्टेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव्स। वो एक्सप्लोसिव नहीं है। अब एक बढ़िया बात आ रही है 9th, तो 9 नंबर का पॉइंट आप देखिए, तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म p बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये जो बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसका सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन। अब इसकी एक p ऑर्बिटल, दूसरी p ऑर्बिटल, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन साइडवाइज ओवरलैपिंग करके अपर प्लेन और डाउन प्लेन में पाई बॉन्ड बनाते हैं। और एक p ऑर्बिटल है, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन भी ओवरलैप होके दूसरा एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये बॉन्ड सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। जो ये पाई, ये सिग्मा बॉन्ड जो है साइडवाइज ओवरलैपिंग से होता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड जो है ये p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग। ये नीचे वाला पाई बॉन्ड वो भी p ऑर्बिटल से बनता है। आपको पता है p ऑर्बिटल 3 टाइप की होती है, px, py, pz। ठीक है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है
3 बॉन्ड है, तीनों की ओवरलैपिंग से, तो पीएक्स पीएक्स की ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड, ये पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। बाकी पी वाई एंड पी जेड साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बनाती है तो उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पी पाई पी पाई। ठीक है, चलिए अब उसी पॉइंट पे चलते हैं। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, अदर एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन का जो ये पी पाई बॉन्ड है वो खुद के साथ है, नाइट्रोजन विथ नाइट्रोजन कैन फॉर्म, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड फॉस्फोरस नहीं आता है, आर्सेनिक के साथ डबल बॉन्ड आर्सेनिक नहीं आता है, एंटीमनी डबल बॉन्ड, और मेटल की तो बात ही नहीं है, उसमें तो मेटालिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो बिस्मथ तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये सब जो है फॉस्फोरस का, अगर आप टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला देखो तो P4 जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऐसे P4, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं। अब नाइट्रोजन डाइएटॉमिक आप जब लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, तो इसमें पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पी पाई पॉसिबल है, यहाँ सब बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड ही, ये सब सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10। अब नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, मतलब कि और एक बात से मैं आपको समझाऊं, तो देखिए यहाँ पे R3N डबल बॉन्ड O मैंने लिखा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप तो है ऑलरेडी, और डबल बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन का हो गया 5 बॉन्ड। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर्ड, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे डी ऑर्बिटल होगी, यहाँ पे पी ऑर्बिटल होगी, आप 11th में पढ़ चुके हो, तो ही ये पाई बॉन्ड पॉसिबल है, ये वाला, ये तो सिग्मा है। ठीक है, अदरवाइज दिस पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो ये पाई बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर मैंने लिखा है कि नाइट्रोजन में इस टाइप के कंपाउंड R3N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R3N डबल बॉन्ड CH2 इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको इससे थोड़ा इसको थोड़ा इजी करना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी नॉट ग्रेटर देन 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो ऐसे भी ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो बाकी जो कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, उसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इस नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। आप देखिए 22 2s2 2p3, तो यहाँ सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल आती ही नहीं है। बाकी फॉस्फोरस से लेके आप आर्सेनिक तक चले जाओ तो उसमें डी ऑर्बिटल आती है 33 344 455 45 66 56 67। ठीक है, तो फॉस्फोरस से आगे, यहाँ सिर्फ एग्जांपल फॉस्फोरस के ही देने हैं, फॉस्फोरस से आगे ये डबल बॉन्ड पॉसिबल है। अब मैं वही कंपाउंड फॉस्फोरस के साथ लिखता हूँ कि R3P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये P, मानो कि फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल, उसका साइडवाइज ओवरलैपिंग होके बनता है। तो फॉस्फोरस के साथ पास डी ऑर्बिटल तो है, ऑक्सीजन के पास P ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को, इसका डी और ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है पाई, तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे डी पाई पी पाई। डी पाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि फॉस्फोरस की डी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है। यहाँ पी पाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है। जैसे कि एक की ये डी ऑर्बिटल, मानो कि ये फॉस्फोरस की डी ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल है, ये डी है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ओवरलैप होके ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबल है। और एक हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री पार्ट 1, वो चैप्टर का नाम है
कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें एक चीज़ आएगी लिगेंड। अभी आप इसको छोड़िए, लिगेंड के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन फॉस्फरस अगर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ जो मैंने एक बॉन्ड छोड़ के रखा है, ये वाला, ये बॉन्ड जो मैंने छोड़ के रखा है, वो बॉन्ड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइंड होगा। और जब डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये पी का बॉन्ड बनेगा तो ये पूरा पार्ट एक्ट्स एज अ लिगेंड, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्ट्स एज अ लिगेंड। अभी आपको समझना नहीं है कि व्हाट इज एक्ट्स एज अ लिगेंड। तो ये जो बॉन्ड बनता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, ये राउंड वाला, वो बॉन्ड भी डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ। तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, शायद ये टेक्स्ट बुक में है कि नहीं, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। कभी आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ लिगेंड, तो ये पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो ये दो, ये है ट्राई इथाइल फॉस्फरस, और ये है, यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया, आपको 3 करना है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ है ना C6H5, ये 3 टाइम, जैसे यहाँ पे लिखा है C2H5 3 टाइम, ऐसे C6H5 3 टाइम एस, इसको बोलते हैं ट्राईफिनाइल आर्सेनिक। और ये जो बॉन्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ बनेगा, और ये डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, और इसमें ये पार्ट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ विल बी एक्ट एज अ लिगेंड। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको लिगेंड क्या है, ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं ये दोनों, ठीक है, समझने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को याद रख लीजिए, और इतना याद रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ये लिगेंड। तो ऐसा नाइट्रोजन में नहीं हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बहुत ही इजी एंड बढ़िया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। वाई रीजन दे सकते हो, लेकिन आपको पता है डी ऑर्बिटल एब्सेंट, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे, यहाँ डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज ग्रेटर देन 4। ओके, 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर अदर एलिमेंट का आएगा, यहाँ 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं आएगा। मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशन मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कैन फॉर्म बाय एलिमेंट। तो ये 11 पॉइंट मैंने अपनी लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक को साइड में रखते हुए आपको समझ में आ जाए ऐसे फ्रेम किया है। एनोमलस बिहेवियर जो है वो बच्चों को बहुत परेशान करता रहता है, तो आप ठीक तरीके से जैसे मैंने लिखा है, यू हैव टू राइट as I have written on pages, okay, then when you revise it, then easily you can understand the difference, what is the anomalous behavior of nitrogen with respect to other elements of the same group, ठीक है। आपको और किसी के साथ नहीं करनी, अपने ही फैमिली मेंबर के साथ। कितने मेंबर है साहब? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 की जो फैमिली है, लास्ट वाला तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि वो सिंथेटिक एलिमेंट और रेडियो एक्टिव है। उसमें से जो ये सबसे छोटा है, वैसे भी हर एक घर में जो छोटा होता है ना वो बहुत परेशान करता रहता है, तो ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो अपने ही फैमिली मेंबर के अदर एलिमेंट्स से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। तो मैंने आपको डिफिकल्ट ना लगे ऐसे 11 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली लिखा है, तो आप प्रिपेयर करिए और ओरली एक बार मुझे लिख के सबमिट करिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यू आर इन द 12th स्टैंडर्ड एंड दिस इज द लास्ट स्कूलिंग ईयर, ओके, सो बी सिंसियर, प्रिपेयर इट। 15-20 मिनट लगेंगे प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो ईमानदारी से प्रिपेयर करके ओरली लिख के मुझे ये सबमिट करो। इसकी मैं PDF भी साथ में भेज रहा हूँ। तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।
Okay, thank you friends, thank you very much.